Hello, guys, and welcome back to Equi Edge Research, where we share cutting edge insights for you across different sectors, overall economy, and we try to decode some stock market psychologies for us. So, basically, guys, today we are going to start with a new activity. So, what we are going to do is we are going to look at the trending sectors in the market, and then we try to find out some companies which belong to those sectors, and we try to understand about what the different things are going in the sector, whether the sector is going through a transition period or the transition has been matured now and the cash flows have started hitting or the cash flows are started coming in the companies, and we try to understand about the sectors and companies, and when we try to derive a story about how the things are moving in the market. So hello guys, I am the student of Parth Verma sir, the valuation school chalate hain, and I was one of his part of equity research cohort, and I always admire him. Like whatever things that I have understood or I'm doing now is just because of him, the things that I have learned from him. So guys, what next we are going to do is we are going to take the power sector. Currently the power sector is in trend, and we are going to understand at a macro level about how the power sector is moving, and then we try to go on a micro level about a particular opportunity in a company. So what we do is first we try to understand about how the things are working in the market, first on the economy side, then specifically on the power side, and then specifically on the company that we are going to look on. So basically, when we try to understand, so India is at cusp of a multi-decade infrastructure cycle. So basically whatever I'm telling you, जो भी शब्द मैं यहाँ से बोलूंगा या जो भी दलील आपके सामने रखूंगा, हम ट्राई करें कि हम उसको साथ साथ में डिफेंड भी करें, क्योंकि अगर हमें अपनी स्टोरी को डिफेंड करना नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है हमारी रिसर्च में या फिर हमारे कन्विक्शन में कहीं कहीं दिक्कत आ रही है. सो बेसिकली अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मैं ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम an understanding about different indicators. Now what are these indicators यार ना, अगर आपको इकोनॉमी में एक्चुअल में अभी क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या तेजी है ये जानना है या फिर मंदी है ये जानना है, तो आपको कैसे पता चलेगा. तो यार कुछ ना इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनके नंबर्स को देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट यहाँ से क्या बुलिश फेज में है, बेयरिश फेज में है, क्या हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है या is under development or is getting degraded. ये सब हमें थोड़ा थोड़ा पता चलता है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले कुछ ऐसे सेक्टर्स का, जैसे कि स्टील सेक्टर हो गया या फिर सीमेंट सेक्टर हो गया, अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर के जितने सेल्स है, टोटल सेल्स है, या फिर इन सेक्टर्स में रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है, तो हमें ये बात समझ आएगी कि इंडिया इज करेंटली फोकसिंग ऑन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर साइड. बेसिकली अगर बहुत देखिए, जैसे आप पहले के मोदी बजट्स को देखिए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च किया, तो बेसिकली जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा खर्च किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टोरी क्या बनी, क्या डेफिनेटली बनी. क्या सीमेंट के प्राइसेस राइज किए, क्या डेफिनेटली किए. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स को बढ़ाया था, राइट. सिमिलरली क्या अब गवर्नमेंट इस बात पर फोकस कर रही है कि मैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने केपेक्स को बढ़ाऊं? इसी बात को हम जानेंगे. सो बेसिकली क्या होता है कि अभी हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग स्टेज पे चल रही है. इंडिया हैज लुक्ड एट एन एम्बिशियस गोल of being a developed economy till 2047 to 2050, and for that we need at least a GDP of almost 35 trillion. So if we try to understand that from the current एग्जिस्टिंग पोजीशन जहां पर हम खड़े हैं, वहां से 2050 तक हमको 10 से 11% CAGR ग्रोथ जो है हमें कंटिन्यूसली चाहिए कि हम वहां पर पहुंच सकते हैं. अब हमें ये बात समझनी है कि जब हम ये बात जान रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, तो इकोनॉमी में ग्रोथ होती है ये कब दिखता है? जब जितनी कंपनीज हमारे कंट्री में है उनकी सेल्स बढ़ती है, उनकी रेवेन्यू बढ़ती है. तो जब रेवेन्यू बढ़ता है तो हमें क्या पता चलता है कि लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. जब लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि लोगों के पास जो आमदनी है, उनकी जो आय है, उनकी जो इनकम है, जो उनके पास पैसा पड़ा है, क्या वो बेहतर लोग खर्च कर रहे हैं, क्या ज्यादा खर्च कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सेविंग इट इन देयर पॉकेट्स. क्या लोग डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी आइटम्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या लोग लग्जरी पे पैसा खर्च कर रहे हैं. स्पेंडिंग एट लग्जरी, क्या लग्जरी सेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ इंडिकेटर्स कि लोगों के पास पैसा आ रहा है और लोग खर्च कर रहे हैं? डेफिनेटली इट इज वन ऑफ देम. सो बेसिकली गाइज दिस इज ऑल अबाउट इट. बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडिया का ना जो कंजम्पशन है उसके इलेक्ट्रिसिटी की या फिर
इकोनॉमी के भी जो ड्राइवर्स है, अर्बनाइजेशन हो गया, कंजम्पशन बेस का राइजिंग हो गया, या फिर जो हमारा ये टारगेट है 2047 तक डेवलप इकोनॉमी बनने का, वो हो गया। लेकिन अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है, जो पावर सेक्टर है, तो इंडिया का जो पर कैपिटा पावर कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा लो है एज कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज पर कैपिटा पावर कंजम्पशन। मतलब हमारे देश का हर आम नागरिक जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज। जितना लोग, मतलब जो पूरी दुनिया के लोग जितना कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें पर पर्सन जो कंजम्पशन है वो हमारे देश का कंपैरेटिवली छोटा है, जिसकी वजह से वी हैव अ स्लाइट रूम। देखिए कैसा होता है कि अभी हम डेवलपिंग स्टेज में हैं, तो अगर हम देखें कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर कंजम्पशन का क्या पैटर्न चल रहा है, तो हमें देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा गैप है। तो क्या ये जो गैप है इसको भरने के लिए क्या हमें पावर एक्स्ट्रा चाहिए, क्या हमें कैपेसिटी एक्स्ट्रा चाहिए? डेफिनेटली हमें चाहिए। तो क्या हमारी अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन ज्यादा है, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग बिजनेस इन पावर सेक्टर ज्यादा है? डेफिनेटली ज्यादा है। सो बेसिकली क्या होता है कि जब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो हमारा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है या पावर कंजम्पशन जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब इसके पीछे क्या दलील दे सकते हो? इसके पीछे मैं बताता हूँ। अर्बनाइजेशन बढ़ता है, इकोनॉमी बढ़ती है, तो उसके साथ क्या है, एट द सेम टाइम क्या हमारे देश की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है? डेफिनेटली बढ़ रही है। क्या उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ रहा है? डेफिनेटली बढ़ रहा है। तो जो एक्चुअल में कंपनीज हैं, जो कि सारी FMCG कंपनीज आप उठा लीजिए, या फिर आप स्टील, सीमेंट, या फिर ओवरऑल कोई भी सेक्टर आप उठा लीजिए, क्या उसमें कंजम्पशन बढ़ेगा? डेफिनेटली। क्या उसकी वजह से जो सारी कंपनीज है वो क्या अपनी कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे? डेफिनेटली बढ़ाएंगे। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें ऑटोमोटिव सेक्टर की, तो इंडिया हैज बिन ऑन एन एम्बिशियस टारगेट और एन एम्बिशन क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री, एंड वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस द ICE इंजन्स विद द इलेक्ट्रिकल मोटर्स और इलेक्ट्रिकल इंजन्स। तो क्या हमें वहां उस ड्राइवर की वजह से भी क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। इंडिया ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर का और डेटा सेंटर्स का प्लान किया है। सी, एज अ डेवलपिंग नेशन एंड अ नेशन विद अ ह्यूज पॉपुलेशन, वी हैव लॉट ऑफ डेटा रिलेटेड टू पीपल, their consumption patterns, the way they consume internet, and lot of different things. So in order to save this, do we need lot of cloud centers? Do we need lot of data centers? Do we need AI infrastructure? So if we look from the recent decade, with the course of time, when we talk about the AI infrastructure, or the wave of digitization, we get to understand we have changed a lot of things. If we talk about the Aadhaar Yojana, if we talk about the UPI, if we talk about DG Locker, ONDC, if we talk about government cloud systems. So what we are on a goal is to create a in-house data centers, and we try to increase our digitization. For all these things we also need energy, and we don't want to import energy from outside, so we are trying to do capacity expansions so that we can fulfill our own energy requirements as our own country, and that also helps us in moving forward in the mission of Mr. Modi, that is Atmanirbhar Bharat. See, each and every government, there are some pros and there are some cons. If there are some pros, we will definitely keep them as goods, and if something that we feel is not right, we try to condemn it. We try to हम उसका थोड़ा सा विरोध करें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि समय पर सपोर्ट भी तो किया था यार, है ना? अगर हम बात करें कि जो हमारी इंडिया की करंट पावर कैपेसिटी है, तो अगर हम बात करें, सो द करंट पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट 475 गीगावाट्स। सो अगर इसको अगर हम बाइफरकेट करें, तो ये फॉसिल बेस्ड कैपेसिटी होती है और नॉन फॉसिल बेस्ड कैपेसिटी होती है। जब हम बात कर रहे हैं कि ये फॉसिल बेस्ड कैपेसिटी है, तो इसके अंदर हम ऑलमोस्ट 247 गीगावाट्स का पावर जो है उसको जनरेट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर हम नॉन फॉसिल्स की बात करें, दैट इज ऑलमोस्ट एट अ नंबर ऑफ 228 गीगावाट्स। तो अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ये जो स्प्लिट है बिटवीन फॉसिल एंड नॉन फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज ऑलमोस्ट 50-50, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ स्प्लिट ऑफ 50-50। तो क्या हम इससे परसेप्शन निकाल सकते हैं? तो क्या हम इससे ये परसेप्शन निकाल सकते हैं कि India is now not only focusing on power generations, but we are also focusing on the grid stability, as well as we are trying to increase the split of green, or what we can say as cleaner power generation, right? That is also important. So that with the course of time is moving.
तो जब हम बात कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट की, या फिर हम बात कर रहे हैं पावर की, तो ये हम जो मेजर करते हैं इसकी जो मेट्रिक्स है दैट इज मेगावाट्स एंड गीगावाट्स। मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। 1000 मेगावाट इज 1 गीगावाट। तो अगर हम इसको ऐसे पढ़े तो हम बोल सकते हैं कि 4,75,000 मेगावाट्स हमारी टोटल करंट कैपेसिटी है, और उसमें से 2,47,000 मेगावाट्स जो है हमें आ रहे हैं फॉसिल बेस्ड से, और बाकी का जो है वो हमें आ रहा है नॉन फॉसिल बेस्ड से। अब जो फॉसिल बेस्ड है इसके अंदर क्या होता है कि हम इग्निशन बेस्ड पावर जनरेशन करते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं। इन पावर प्लांट्स में बॉयलर्स, टर्बाइंस और जनरेटर्स होते हैं। बॉयलर्स वो जगह है जहाँ पर स्टीम जो है उसको जनरेट की जाती है बाय इग्नाइटिंग कोल और बायोगैस, और यहाँ इग्निशन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो स्टीम है वो टर्बाइंस को घूमने में मदद करती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। एंड नॉन फॉसिल बेस्ड में हमारे पास आ जाते हैं रिसोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थिंग्स लाइक दैट comes from natural resources, and we don't have to do something out from it. They are not derived, they are existing ones. So जो हम बात कर रहे हैं मेगावाट या गीगावाट कैपेसिटी, so that is these are the capacities, these are the amount of electricity that we can produce, and not this is the amount of electricity that we are consuming as a nation, right? That is very much important. So now the question is, why do we need a megawatt expansion? तो यार जैसे हमने बात करी सब कुछ इंटरलिंक्ड है, और जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, तो हमें इसका एक्सपांशन चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, क्योंकि पावर एक्सपांशन इज अ इनिशिएटिव दैट शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज अ होल. So basically, government has guided for a 80,000 megawatt to 1 lakh megawatt expansion in the thermal capacity. That is almost 80 to 100 gigawatts with the course of time, including both fossil and non-fossil based fuels from that can be generated from fossil based and non-fossil based fuels. So क्या ये हमें ये परसेप्शन दे रहा है कि with the course of time जो थर्मल एनर्जी है उसके ऊपर से हमारी जो डिपेंडेंसी है, क्या हम उसको टोटली इरेडिकेट कर पाएंगे? सी एज अ पर्सन I feel that ये होना चाहिए, but we also have to be mature enough to understand that why this is not possible. So with the course of time, we are going to understand this also. So what we need to understand is the Indian power sector is the fastest growing sectors in India, and our Indian power sector is almost ranks at fourth largest power sector across the world, and we are on an ambitious target of reaching at 1,000 gigawatts of power capacity till 2032 with a consistent CAGR growth of 10 to 11% from current existing capacities. So basically, the next thing is, and also we have the goal that we reach at 500 gigawatts of renewable energy. That is almost we want to match, we want to make a 50-50 split of thermal as well as the renewable sources of energy. तो अब हमने ये देखा कि यार गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि 50-50, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको 70-30 करें। वी कैन इवन जनरेट मोर क्लीनर एनर्जी एज कम्पेयर टू थर्मल एनर्जी। सो इसके पीछे क्या कारण है कि हम एज अ कंट्री इसको नहीं कर रहे? सबसे पहली बात तो है कि इंडिया की जो जोग्राफी है वो इस बात को सपोर्ट नहीं करती है। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ बेस लोड पावर जनरेशन की, दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से हम ट्राई कर रहे हैं कि 50-50 जो है इस स्प्लिट को मेंटेन रखा जाए। दैट इज बेस लोड पावर वो बिजली है जो आपको 24/7 लगेगी ही लगेगी, इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। चाहे दिन हो या रात, फेस्टिव हो या नॉन फेस्टिव सीजन, गर्मी हो या सर्दी, आपको ये जो पर्टिकुलर एनर्जी है ये आपको कंटिन्यूसली लगेगी। आपको हॉस्पिटल्स में लगेगी, फैक्ट्रीज में लगेगी, डेटा सेंटर्स में लगेगी। यू विल नीड इट फॉर AI इंफ्रास्ट्रक्चर, यू विल नीड इट फॉर सिटी लाइट्स। वी कैनॉट क्लोज देम डाउन, राइट? अगर हम बोल रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी, वी दैट इज द नीड ऑफ एन आवर, राइट? वी कैनॉट मेक द ग्रिड अनस्टेबल। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, द बाइफर्केशन ऑफ फॉसिल एंड नॉन फॉसिल, उसमें से भी कोल बेस्ड एंड देन सोलर बेस्ड, वाटर बेस्ड एंड विंड बेस्ड, दिस इज नोन एज द ग्रिड स्टेबिलिटी। तो ये जो बेस लोड पावर है ना, अभी देश को ना 249 गीगावाट की बिजली का बेस लोड चाहिए। मतलब क्या कि ऐसा क्यों? देखिए आप ये बात समझिए कि थर्मल और बाकी रिन्यूएबल सोर्सेस में डिफरेंस क्या है। रिन्यूएबल सोर्सेस में आप अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो वी विल गेट एनर्जी फ्रॉम द सोलर पैनल्स। वो कब होगा?
जब सूर्य की किरणें सोलर पैनल्स पे पड़ेंगी तब क्या पावर जनरेशन होगा? डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाए, या फिर शाम आपका 10 से 6 बजे तक पावर जनरेशन हो रहा है, लेकिन 6 बजे के बाद का पावर जनरेशन टोटली हो नहीं रहा। एट द सेम टाइम जब हम विंड एनर्जी की बात करें, तो क्या आपको लगता है बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं? क्या हमारी ज्योग्राफी इस बात को सपोर्ट करती है? क्या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इन टर्म्स ऑफ हवा आती है क्या इंडिया में? डेफिनेटली। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ रिलायबल, कंप्लीटली रिलायबल सोर्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज नेवर अ रिलायबल सोर्स, क्योंकि उसमें तो हमेशा वेव्स में फ्लक्चुएशंस आएंगे, एंड बेस्ड ऑन द फ्लक्चुएशंस इन द वेव्स द जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैपेंस ओनली व्हेन द हाइड्रो टर्बाइन दे मूव। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ कंप्लीटली जिसके ऊपर रिलायबल सोर्स। तो हमें ये जो बेस लोड कैपेसिटी हम वो कहाँ से फुलफिल करेंगे? करंटली हमको 249 गीगावाट की बेस लोड कैपेसिटी चाहिए। इसमें आपके और हमारे घर का एसी चलता है, इसमें ट्रेन्स चलती है, इसमें आपका मोबाइल चार्ज होता है, इसमें आपकी बाकी ई मोबिलिटी जो आप इलेक्ट्रिकल कार्स खरीदते हैं और रात को उसको चार्जिंग में रखते हैं, ये सारा एनर्जी कहाँ से आ रहा है? ये आपको क्या कंटिन्यूसली चाहिए? डेफिनेटली चाहिए। क्या आप इसमें रोक लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो अब क्या किया जाए? तो हमने ये तरीका निकाला है, गवर्नमेंट ने ये तरीका निकाला कि हम दोनों को स्प्लिट में रखें। अब यहां से आगे जो भी कैपेसिटी आएगी, जो हमको एक्सपांड करना होगा, क्या हम उसके अंदर दोनों की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेंगे क्या? थर्मल में क्या है? थर्मल एनर्जी इज solely dependent upon the coal. The more amount of coal that you exploit from the grounds, the more energy that you can, the more heat energy that you can produce, and the more you are able to make the turbines move, the more you are going to generate energy. मतलब क्या है कि थर्मल में आप स्विच चालू करो तो एनर्जी है, स्विच बंद कर दो तो एनर्जी रुक जाएगी। क्या 24/7 एनर्जी का सप्लाई होगा क्या? डेफिनेटली 24/7 एनर्जी का जो सप्लाई है वो होगा। सो दैट इज द थिंग। तो इसका मतलब क्या कि अब ये जो एक्सपांशन आएगा 80 to 100 गीगावाट्स का, ये दोनों सेक्टर्स में आएगा, पीएसयू में भी आएगा, मतलब पीएसयू कंपनीज में भी आएगा, प्राइवेट कंपनीज में भी आएगा। तो इससे क्या परसेप्शन बना क्या कि फ्यूचर में हमारा जो हम बोलते हैं कि कंप्लीटली हम कोल के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे, ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं 80 to 100 गीगावाट ऑफ थर्मल पावर एक्सपांशन, तो इसके अंदर जो पावर प्लांट्स लगते हैं, क्या इतना मैसिव कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद 7-8 साल बाद आप कंप्लीटली बंद कर दोगे क्या? नहीं। ये अगले 25-30 साल चलने वाला है। क्या कोल का एक्सप्लॉयटेशन अगले और 25-30 साल चलने वाला है? डेफिनेटली चलने वाला है। क्या हमारे पास करंट एक्सप्लॉयटेबल कोल इज स्टैंडिंग एट 4 लाख मेट्रिक टन्स और 40 लाख मेट्रिक टन्स, मतलब इतना, इट्स अ बिग नंबर। इतना टन्स वी कैन स्टिल एक्सप्लॉइट। एंड देखो, ह्यूमंस का ना ये नेचर है कि उसको दिखता है ना कोई चीज एक्सप्लॉइटेबल तो डेफिनेटली करेगा। एट द सेम टाइम हमारी ज्योग्राफी हमें इस बात की मंजूरी नहीं दे रही कि हम कंप्लीटली रिन्यूएबल सोर्सेस पे अपनी डिपेंडेंस को रखें, क्योंकि वो रिलायबल नहीं। So this was the story of the power sector, and now धीरे धीरे we'll move to our company as well. तो अगर हम बात करें, कुछ हम पहले थोड़ी सी दिक्कत की बात करते हैं, हम थोड़ी सी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। तो ऑलमोस्ट 500 बिलियन, दैट इज 50,000 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है, जो कि बहुत प्राइवेट एंड पब्लिक प्लेयर्स विद द कोर्स ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू डू। इन 500 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें अगर बाइफर्केशन करें तो 300 बिलियन जो है वो रिन्यूएबल, 110 बिलियन जो है वो ट्रांसमिशन या फिर नॉन रिन्यूएबल, मतलब जो 300 है उसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों आ जाते हैं। 110 में ट्रांसमिशन आ जाता है और 91 बिलियन में बेस लोड का भी ये आ जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि पावर सेक्टर जो है, इसके अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं आने से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर्स है उनके पास क्या बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है? डेफिनेटली बहुत ज्यादा लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि सेंटर ओन्ड है, स्टेट ओन्ड है। तो क्या इनके पास पैसा ज्यादा है? डेफिनेटली। क्या इनके पास गवर्नमेंट की बैकिंग ज्यादा है? डेफिनेटली ज्यादा है। क्या पहले से इंडिया की ये पॉलिसी रही थी कि उस टाइम पे जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स चल रहे थे गवर्नमेंट उनको पकड़ करके रखे ताकि एक स्टेबल रेवेन्यू कंट्री के लिए जनरेट कर पाए, ताकि हम आगे बढ़ सके? डेफिनेटली ऐसा था। क्योंकि पहले आपने स्टार्टिंग में याद किया होगा तो डेफिनेटली ऑटोमोटिव सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, पावर सेक्टर, रेल आज भी गवर्नमेंट के हाथ में है। सो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, पहले गवर्नमेंट्स जो एयरप्लेन्स या फिर एयरपोर्ट्स वाली जो फैसिलिटी थी, एयर ट्रांसपोर्ट वाली फैसिलिटी थी, वो अपने पास रखी हुई थी। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हुआ, धीरे धीरे 1991 का लिबरलाइजेशन आया जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई, राइट।
डेफिनेटली ये सारी चीजें हुई। तो पावर का जो धंधा है, इसमें प्राइवेट प्लेयर आने से क्यों डरता है? तो बेसिकली यार प्राइवेट प्लेयर बोलता है कि मैं तो प्लांट तो बना दूंगा यार, प्लांट बनाने में क्या है, सिर्फ कैपिटल इंटेंसिटी है, मेरे को कैपिटल लगाना है वो तो मैं बना दूंगा। बट बात क्या है कि मैं इन्वेस्टमेंट डाल दूंगा, लेकिन दो चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि क्या कोल मिलेगा कि नहीं, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट का जो बेस रॉ मटेरियल है जो उनको चाहिए फॉर जनरेशन ऑफ हीट, दैट इज कोल। और दूसरा इज बिजली का बायर कौन होगा, एंड दैट इज द रीजन करंटली पीपीएस चल रहा है, दैट इज पावर परचेस एग्रीमेंट। ये दोनों फॉर्मेट में होता है, एक मर्चेंट बेस्ड में होता है और दूसरा होता है जो स्टेट डिस्कॉम्स होती हैं, ये वो बॉडीज है स्टेट गवर्नमेंट्स की जो कि अपने स्टेट के लिए बिजली का कैपेसिटी को देख करके डिमांड को, जो फ्यूचर डिमांड है उसकी जांच करके जो पावर कंपनीज है उनको कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स इशू करती है फॉर परचेसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द पीपीएस। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपके पास प्लांट है, आपके पास पावर भी है, लेकिन आप बेचोगे किसको? आपके पास अगर खरीदार नहीं है तो क्या आपका सेल्स नहीं होगी? सेल्स नहीं होगी तो क्या आपको वर्किंग कैपिटल का इशू आएगा? डेफिनेटली आएगा। और इतना बड़ा पावर प्लांट लेके चले हो, इतना बड़ा हाथी लेके चले हो, आपको सैलरीज देनी है, आपको प्लांट का मेंटेनेंस करना है। आप 10,000 करोड़ का भी छोटा सा प्लांट डालते हो, आपको 1,000, 1,200, 1,500 करोड़ रुपए उसके मेंटेनेंस में जाएगा एनुअली। सो आपके पास जो कैश फ्लोज है क्या वो रिकरिंग होने चाहिए? डेफिनेटली वो रिकरिंग होने चाहिए। एंड दैट इज द रीजन कि पावर सेक्टर्स में जो पावर जनरेटिंग ओईएम्स है, अगर उनके पास प्री परचेसिंग पावर एग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइंड है तो उनकी जो वैल्यूएशंस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा दिखेंगे एज कम्पेयर टू जिनके पास थोड़े से कम पीपीएस है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जो कैश फ्लोज है दैट आर प्रिडिक्टेबल एंड मोर स्टेबल। सो दैट वाज आल्सो थिंग। अब पावर के अंदर अगर पॉलिसी की बात करें तो जो शक्ति पॉलिसी है उसको गवर्नमेंट जो है लेकर के आई है। पहले बता दिया जाता है कि आपको इतना कोल मिलेगा, आपको इतना कोल की सप्लाई होगी और आपको इतने साल तक के लिए मिलेगा। मतलब जो प्राइवेट प्लेयर के लिए जो सबसे बड़ी डिस्क्रिपेंसी या फिर सबसे बड़ा डर था कि क्या हमें कोल मिलेगा, वो तो खत्म हो गया। एट द सेम टाइम इस शक्ति योजना के अंदर जितने सारे स्टेट के डिस्कॉम्स है दे कम टुगेदर और ये सारे पावर जो है इसके नीड्स को जांच करके टेंडर्स पास करती हैं पावर कंपनीज को। इंडिया में बड़े पावर कंपनीज कौन से हैं? एनटीपीसी, ये पब्लिक सेक्टर का हो गया। हम बात करें सबसे बड़ा तो है अदानी, और 3-4 पावर प्लांट्स है, कुछ स्टेट ओन्ड भी है, ये सारे हैं। तो इनके बीच में क्या होता है कि ये जो पीपीएस है इनको जारी किया जाता है और उसके बाद इनसे इनके बीच में अग्रीमेंट्स हो जाता है। दीज आर द लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स, 25 to 30 ईयर्स का अग्रीमेंट होता है। और इसके अंदर अगर हम थोड़ी सी बात करें, जांच करें कि कैसे पावर कंपनीज पैसा कमाती हैं, इन दो तरीके से पैसा कमाती हैं। इनको पहले इसमें होता है कि आपको आपका पावर प्लांट स्टेबल रखना है, आपको स्टेबिलिटी के पैसे मिलेंगे। मतलब चाहे मैं आपसे बिजली खरीदूं या ना खरीदूं, तेरे पास 24/7 बिजली होनी चाहिए तो मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। फॉर सपोज अगर हमारा अग्रीमेंट हुआ है कि तेरे पास ऑलमोस्ट 85% बिजली का ये कैपेसिटी होना चाहिए, तो अगर तू मेंटेन करता तो मैं तेरे को उसका पैसा दे दूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं तेरे से बिजली खरीद रहा हूं कि नहीं खरीद रहा। सेकेंड वन इज वेरिएबल, कि मैं आपसे पर मेगावाट या पर यूनिट का चार्ज आपको चार्ज करता हूं जब मैं एक्चुअल में आपसे बिजली खरीद रहा हूं तब। सो बेसिकली क्या होता है, ये दोनों चीजें ना डिसाइडेड होती हैं। जो पहला वाला है जिसके अंदर आपको स्टेबल रखना है, उसके अंदर क्या आपकी डेट कॉस्ट भी आपका क्लाइंट भरता है क्या? डेफिनेटली भरता है। क्या आपको जो सैलरीज देनी होती है क्या वो भी आपका क्लाइंट ही पे ऑफ करता है? डेफिनेटली। क्या जो फ्यूल का कॉस्ट है वो भी क्लाइंट देता है? डेफिनेटली देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप वो आपसे खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है। सो दैट इज द बिजनेस मॉडल। एंड सेकेंड इसमें जिसके अंदर आप उसको पर यूनिट के वाइज बिजली बेच रहे हो, तो पावर में ना आप बिजली का प्राइस नहीं बढ़ा सकते। पावर में आप जितना अपना ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज को बढ़ाते जाओगे और आपकी कॉस्ट कटिंग करते जाओगे। फॉर सपोज कोई पावर सेक्टर है और उसके पावर कंपनी है और वो अपने एम्प्लॉयज का खर्चा बढ़ने नहीं दे रही, बहुत जल्दी वो कम ही रख रही है, तो क्या इसकी वजह से उसकी कंपनी थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन ले पा रही है क्या? डेफिनेटली उसकी वजह से ज्यादा मार्जिन ले पा रही है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब पावर के धंधे में आप इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट का भाव नहीं बढ़ा सकते, वो पहले से आप म्यूचुअली डिसाइड करते हो और उसके बाद आप कॉस्ट कटिंग से अपने मार्जिन को एक्सपांड करते हो। That is how the power sectors on a broader term it works. India as a country we have got almost the largest interconnected grid. मतलब क्या कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम यूनिफॉर्मली एक साथ बिजली को ट्रांसफर कर सकते हैं।